Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh signing in for today's video. I hope every one of you is doing well and are safe at their place. Before we proceed guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel. We will be doing chapter number 1 of history, which is all about French Revolution. Okay, in this chapter we'll understand what is this term revolution. कभी भी कोई प्रोटेस्ट होता है उसको हम रेवोल्यूशन क्यों नाम देते हैं. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन. बेसिकली हम फ्रांस की बात करेंगे. हाउ डिड द चेंज हैपन देयर. ओके, एज यू ऑल नो, हिस्ट्री इज व्हाट? हिस्ट्री इज अबाउट स्टडीइंग द पास्ट and letting us know what all happened in the past and what we have gained from the past. Okay, so motive of studying history is clear. So in this chapter we'll be studying about the French Revolution. This is very important as we Indians have borrowed several important features from this revolution into our Indian constitution. Therefore, it becomes very important for us to know about this revolution. Okay, so it's better if you guys study history as you listen to a story. क्योंकि कहानी जैसे हम सुनते हैं तो याद रहती हैं चीज़ें. सो एक कहानी की तरह ही हम इस चैप्टर को करेंगे so that it is easy for you all to memorize the fact and what all events happened and in what sequence did they happen and what they led to the result. Okay, now first let me take you back in the time of 1784. 1784 की बात करेंगे हम. जुलाई 14 पेरिस की बात करेंगे हम. ओके, फ्रांस की बात हो रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो ऑब्वियस है, तो पेरिस इज द मेन प्लेस हियर. तो पेरिस की बात कर रहे हैं. पेरिस, आई होप एवरीबडी इज फेमिलियर विद दिस प्लेस. आईफिल टावर तो सबने देखा ही है. ओके, सो व्हाट हैपेंड हियर इन 1784 इज 7,000 people assembled, men and women. They all came together and start protesting against the king. Okay, people of Paris have come together and formed the People's Militia. It means the People's Military. Revolution है, revolt करने आए हैं against the prince or the king. Therefore इसको हमने बोला है People's Militia. अब ये लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? Why did they gather here? Why they were protesting against the king? Because the king was very selfish. He used to think about himself and not of his people. Therefore, this was the time when the people thought it's the right time we should speak against the king and change the system, because king is not worried about the mass. So what happened here in Paris? People start protesting against the king. Many of them took out their guns and went to this Bastille. This is a place where they had the Bastille jail and started fighting here in this jail and escaped many of the people and hurt many officials here. Okay, why did the people came and hurt the officials here in the Bastille jail and escaped the prisoners from here? It was only because Bastille jail was something which was totally under the control of the king, and the target was to harm the king authority. Okay, therefore they went to this jail and protested against, in order to show their protest against the king. They went here and killed the official and made the prisoners escape from this Bastille jail. Now things were getting bad day by day. The riots, the incident which were happening all around the Paris, now started spreading all over the country. Okay, so सब जगह के लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए. Everybody came together and start protesting against the king. I hope the story till now is clear. What all happened on July 14, 1784, why people were angry with the king. Let's now learn about who was the king and what was the reason why people were so angry with the king. So at this time, here the king was Louis XVI. Okay, and why the people were angry? Because the king was selfish and was only thinking about his own selfish motive and about his queen. सिर्फ अपने बारे में सोचता था और किसी के बारे में नहीं सोचता था. किंग की ड्यूटी क्या है? It's all about working for the people and thinking of his kingdom.
whereas the king was not performing his duty. Now what happened? अब थोड़ा सा king के बारे में पढ़ेंगे. This King Louis, he was from the Bourbon family. Okay, and in 1774 he was made the king of this place, and at the age of 20 he got married to the Queen Maria, who was the princess of Australia. Okay, so this is the story. And when he became the king, so another problem here is, when he became the king, this King Louis found that there was no treasury. कोई पैसा नहीं था उनके राज्य के लिए, राज्य में पैसा खत्म हो चुका था. ओके, दैट इज द ट्रेजर वाज एम्प्टी. जब वो राजा बना उसने देखा वहां कुछ भी नहीं था. Therefore, this place was lending into the financial crisis. बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी आ गई थी, and people now were demanding to change the system of government. कौन सा system of government था यहाँ? Monarchy. Monarchy means, mono means one, the rule of the king. Okay, monarchy is rule of the one person, all the power lies in one hand. Therefore, now due to this financial crisis and king being selfish about his own interest, people were now demanding to change the system of government. They want to bring a change here in the society. Now, let's see what were the reasons for this financial crisis. Okay, अब क्यों पैसों की तंगी आ चुकी थी फ्रांस के अंदर और क्यों लोग चाहते थे सिस्टम चेंज हो. Okay, number one reason, listen to the reasons very carefully. This is an important question that you can find in your final exams. Okay, so listen to it very carefully. What are the reasons behind it? Okay, so number one was the war. कोई भी जगह है, कोई भी राज्य है, कोई भी किंगडम है, अगर वो वॉर के अंदर इंगेज है, लड़ाई चल रही है किसी दूसरे देश के साथ, ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं. ओके, तो उस टाइम में बहुत लंबे लंबे वॉर चलते थे, जिसकी वजह से हमें लोगों को उधर क्या हो रहा था, फाइनेंशियल पैसों की कमी पड़ रही थी. ओके, द सेकेंड रीजन हियर वाज मेंटेनिंग द पैलेस ऑफ वर्सलीज. नाउ दिस is a place, Versailles, Palace of Versailles, where the king used to live. Okay, ये एक ऐसा महल, पैलेसेस महल, okay, बहुत बड़ा महल बना हुआ था, बड़ा सुंदर. और for maintaining a very big building, as you all know, we need money. बहुत expenses लगते हैं उस चीज को, बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए. Therefore, a lot of money was spent on maintaining the palace of the Versailles. Okay, now the third reason here is the independence of 13 American colonies, which costed the King Louis XVI 2 billion livres. इस टाइम में किंग लुइस ने जो 13 अमेरिकन छोटी छोटी कॉलोनीज थी उनको इंडिपेंडेंस दिलवाने में हेल्प की थी. ओके, और these 13 colonies were under the rule of British people. ओके, ब्रिटिश लोग वहां रूल कर रहे थे, एंड ब्रिटिश were the enemy of France. ओके, ब्रिटेन फ्रांस का एनिमी था, क्योंकि फ्रांस ने इन लोगों की मदद की अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए. Therefore, उनको 2 बिलियन लेवरे का नुकसान हुआ. ओके, सो दिस लेवरे इज द करेंसी ऑफ फ्रांस. और कुछ टाइम बाद ये जो करेंसी है इनकी बंद हो गई थी. द वे वी हैव रुपीज एज अ इंडियन करेंसी, ऐसे ही सेम में लेवरे वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस. ओके, तो अमेरिकन कॉलोनीज को छुड़वाने के लिए उनको 2 बिलियन लेवरे का नुकसान हुआ. अब क्या हुआ, जिन लोगों ने फ्रांस को पहले, हर कंट्री अपनी डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियस है लोन्स वगैरह तो लेती है, उस जमाने में भी फ्रांस ने भी लोन लिए हुए थे. तो अब इतने नुकसान के बाद जहां जहां से उन्होंने लोन लिया हुआ था उनको अब वो लोन वापस भी करना था, और उनको 10% का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे उसके ऊपर. Therefore, पहले पैसे की कमी है, अब उनको अपना लोन भी चुकाना है. Therefore, the financial burden was rising. Okay, and the last reason here was for the financial crisis is the other stuff like maintaining the public universities, paying the officials who are working for the government. Okay,
तो राजा को पूरा किंगडम चलाना था, यूनिवर्सिटीज जो उन्होंने बनाई हुई थी वो भी चलानी थी, उनमें ही फंडिंग करनी थी, जो लोग राजा के लिए काम करते हैं ऑफिशियल्स उनको भी पे करना था। देयरफॉर दिस वर द रीजंस जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हमारे फ्रांस में। टू ओवरकम ऑल दिस फाइनेंशियल क्राइसिस इवन द गवर्नमेंट, वहां के राजा ने क्या किया कि टैक्सेस इंक्रीज कर दी ताकि लोगों से ज्यादा पैसा लिया जाए और क्राइसिस को ओवरकम किया जाए। बट दिस ऑल्सो डिड नॉट हेल्प। वाई? बिकॉज देयर वाज नो मनी विद द पीपल, नो मनी विद द किंग। नाउ लेट्स सी हाउ वाज द सोसाइटी डिवाइडेड देयर। जब हम फ्रांस की सोसाइटी की बात करते हैं इन 1784, सी हाउ वाज द सोसाइटी इन फ्रांस। ओके, तो प्रॉब्लम क्यों थी लोगों को उधर, क्या रीजन था, कैसी सोसाइटी थी, वो भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 वाज द फर्स्ट स्टेट, द सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। व्हेन आई से फर्स्ट स्टेट इट मींस द क्लर्जी। फर्स्ट स्टेट के अंदर आते थे क्लर्जी पीपल। क्लर्जी मींस द पीपल हु यूज्ड टू रन द चर्च। ओके, द चर्च प्रीस्ट, और जो लोग चर्च चलाने में हेल्प करते थे वो फर्स्ट कैटेगरी में आते थे। फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट स्टेट विच वॉज फॉर क्लर्जी। ओके, सेकेंड स्टेट के अंदर कौन था? नोबिलिटी। नोबिलिटी के अंदर कौन आएंगे? जो हमारा किंग है एंड ऑल द मिनिस्टर्स। ओके, एंड द थर्ड स्टेट वी हैव द बिग बिजनेसमैन, द कोर्ट, द लॉयर्स, the peasants, the farmer, the landless labor, सब आ जाते थे इसके अंदर। ओके, जनरल पीपल की कैटेगरी वाज द थर्ड स्टेट। नाउ सो दिस फर्स्ट स्टेट एंड द सेकेंड स्टेट, जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी, इनके पास 60% ऑफ द लैंड अवेलेबल थी वहां के। एंड जो थर्ड स्टेट थी, द लैंड पीपल यूज्ड टू से वी हैव नो लैंड। ओके, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग थे, रिच एंड द पुअर बोथ। ओके, जो अपर क्लास थी इसके अंदर उनके पास फिर कुछ लैंड थी, बट द लोअर पार्ट ऑफ दिस थर्ड स्टेट दिस पीपल हैव नो लैंड। ओके, लैंड के अलावा फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को कुछ प्रिविलेजेस भी थे। ओके, प्रिविलेजेस मतलब कुछ फायदे भी थे जो कि थर्ड स्टेट के पास नहीं थे। सो व्हाट वर द प्रिविलेजेस विद देम? नंबर 1 इज नो टैक्स फॉर द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं पे करना होता था। Who was supposed to pay the tax? The third state। ना तो लैंड थी, लैंड भी नहीं है, ऊपर से सारे टैक्स जो है वो इन्हीं को देने हैं, थर्ड स्टेट को। ओके, सो द प्रॉब्लम हियर वाज ऑल वर्क बट नो प्रिविलेजेस। सारा दिन काम करो, टैक्स भी पे करे ये थर्ड स्टेट के लोग, और उनको कोई फायदा नहीं था। ओके, ऑल्सो इन एडिशन जब हम टैक्स की बात करते हैं तो थर्ड स्टेट के लोगों के लिए देयर वर 2 टाइप ऑफ टैक्स। ओके, नंबर 1 वाज टैक्स। टैक्स वाज द टैक्स जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को, विच वाज द नॉर्मल पीपल जो थे इधर, उन लोगों को फर्स्ट स्टेट को देना होता था। फर्स्ट स्टेट में कौन है हमारा? क्लर्जी, द चर्च पीपल। तो नॉर्मल पीपल जो थर्ड स्टेट वाले हैं वो क्लर्जी क्लास को टैक्स पे करते थे। कैसे? कि जो भी उनका हार्वेस्ट आता है, जमीन से जो भी उनकी फसल निकल के आती थी, उपजाऊ जो होता था उनका, उसका 10% दे वर सपोज टू पे टू द चर्च। ओके, एंड देयर वाज अनदर टैक्स व्हिच वाज टैले। दिस वाज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। नोबिलिटी ने, सेकेंड स्टेट ने लगाया था, एंड दिस वाज द डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट पीपल को देने ही देने। ओके, तो दिस वाज द टैक्स व्हिच द पीपल यूज्ड टू पे टू द चर्च, and tally was the another direct tax that the people of the third category were paying। तो अब आपको समझ में आएगा what was the reason why people were protesting against the king, कि काम कर रहे हैं फिर भी टैक्स दे रहे हैं, ना जमीन है ना पैसा है, ऊपर से king being selfish and not working for the people in the kingdom, therefore they now wanted to revolt and want a change in the system of government। And at this time the population of France was 23 मिलियन। ओके, 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन वाज 23 मिलियन, बट जब हम बात कर रहे थे 1789 तक आते आते द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एंड द नंबर इंक्रीज टू 28 मिलियन। अब आपको पता चल गया होगा कि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई है वहां पे। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली
नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गए हैं वहां, देयरफॉर दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग फॉर फूड फॉर देयर बेसिक नीड्स, ओके, तो नीड और डिमांड उनकी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अभी जो हार्वेस्ट, जो क्रॉप्स उगाए जा रहे, जो फसल थी, द हार्वेस्ट वाज नॉट इनफ, वो इंक्रीज नहीं हुई, population and the demand increased but the harvest did not, okay, salary of the people did not increase but क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, महंगाई आ जाएगी, therefore what was happening here, the rich was getting richer and the poor was getting poorer. Also now what happened, क्योंकि पैसे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस थे, this led to the subsistence crisis. सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है जब लोगों की बेसिक नीड ही ना फुलफिल हो पाए, जैसे कि ना तो उनको फूड मिले, ना उनकी अदर नीड्स लाइक क्लोथ्स एंड अदर बेसिक रिक्वायरमेंट जो एक लाइफ में चाहिए होती हैं, जब वो सब चीजें फुलफिल नहीं होती है, दिस इज कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो हमें पता चला पैसे की कमी की वजह से वहां अब खाना और अदर बेसिक नेसेसिटीज की भी कमी होने लग गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, घर कैसे चलेगा, ओके। ऑल्सो क्योंकि सबसिस्टेंस क्राइसिस थी, डिमांड ज्यादा थी और हार्वेस्ट इतना इंक्रीज नहीं हुआ, जो उनकी स्टेपल डाइट का फूड था, ब्रेड, जो कि वो कंज्यूम करते थे डेली, जैसे हम लोग रोटी कंज्यूम करते हैं, उनका ब्रेड है, तो ब्रेड के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, ओके। देयरफॉर द पीपल थॉट ऑफ Why not to protest now? टैक्स भी हम ही पे करें, खाना नहीं है, ना पैसा है, फूड प्राइसेस, जो ब्रेड है, जो बेसिक हमारा कमोडिटी है, उसके तक इंक्रीज, महंगाई आ गई है, वहां कैसे एग्जिस्ट करेंगे। Therefore, the people here in France started protesting against the king. Okay, so these were the reasons why the people start protesting against the king. Okay, behind this protest मेजर हाथ किन लोगों का है, इन लोगों को अंदर अवेयरनेस लाने के लिए किन लोगों का हाथ है, द फिलोसफर्स who were writing the articles at that point of time. Okay, so we'll be studying about now how did the philosopher played an important role here. So as I've told you, the philosophers also played an important role. वो लोग जो उस टाइम पे बुक वगैरह या आर्टिकल्स लिखते थे, ओके। सो हियर विल टॉक अबाउट द 3 फेमस पर्सनालिटीज एंड यू ऑल शुड मेमोराइज देयर बुक नेम, ओके। सो पहले हम बात करेंगे जॉन लॉकी एंड जीन जैक्वेस रोसे, ओके। दे वर वेरी इंपॉर्टेंट हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन in spreading the awareness among the people, okay. So they both had the idea that the society should have equal law for everybody, ना ही सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे करें, बल्कि टैक्स का सिस्टम सबके लिए सेम होना चाहिए। द सोसाइटी शुड बी अ फ्री सोसाइटी, फ्री, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होने चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए सबके पास। The freedom that the people of first and the second state are enjoying, the same freedom should be given to the third state people. Okay, therefore, इन्होंने जॉन लॉकी wrote a book named The Two Treaties of Government. Okay, क्या नाम था इनकी बुक का? Two Treaties of Government. In this book, he criticized the monarchy. Monarchy is the rule of the king. उन्होंने बोला किंग का जो रूल है that is not good, क्योंकि ये भेदभाव करता है लोगों के बीच में, एवरीबडी इज नॉट ट्रीटेड इक्वली एंड द सोसाइटी इज नॉट फ्री। तो इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया मोनार्की को इन हिज बुक द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ओके। सो अनदर फिलोसफर वाज जीन जैक्वेस रोसे, ओके। ही रोट अ बुक नेम्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही टोल्ड द आइडिया अबाउट दैट द गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू इट्स पीपल, लोगों की सुननी चाहिए सरकार को, ये नहीं भी अपनी मनमानी करते रहे। नेक्स्ट कम्स द इंपॉर्टेंट फिलोसफर मोंटेस्क्यू। तो जब ये सब चीजें चल रही थी, एक और न्यू फिलोसफर आए इधर, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बोला दैट द पावर मस्ट बी डिवाइडेड अमंग ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीनों ऑर्गन में बराबर की पावर होनी चाहिए एंड नॉट that the power lies in the one hand which is the king. Therefore उन्होंने भी मोनार्की सिस्टम को क्रिटिसाइज किया।
So these were the three important philosophers who played a very important role during the French Revolution in making people aware about the ideas of free society, equal law, and etc. Okay, so that's it for today's video. We'll be continuing with this chapter in my coming videos. So it's time to tone your brain. These are the questions you guys need to comment in my comment section. Okay, the number one question for the day is, mention 5 reasons for the financial crisis. Why did it happen in France? Okay, what were the 5 reasons which led to the financial crisis in France? Okay, then the second question here is, who wrote the book The Social Contract? You guys need to name the name of the philosopher who wrote the book The Social Contract. Also, third question here is, name the 3 philosophers and their ideas of government. 3 philosophers जिनकी हमने बात की है वीडियो में, तीनों का नाम लिखना है and what were their ideas about the government. वो लोग क्या चाहते थे, कैसे गवर्नमेंट चाहते थे, वो भी एक्सप्लेन करना है. Also, the last question here is, mention the year in which the people protested. Okay, I have repeated the year several times in my video. You guys just need to now give me the year. किस साल में ये protest शुरू हुआ? Okay. So these are the 4 questions you guys need to comment in the comment section, and that's it for today, guys. Do not forget to like, share and subscribe to my channel because this will mean a lot. Thank you so much for watching.